Dear student, in chapter 13 surface area and volume, we are on the exercise 13.7 and question number 7. Question 7 is a right triangle ABC with sides 5, 12 and 13 centimeter is revolved about the side 12. Find the volume of the solid of that. So here a right triangle whose sides are 5, 12 and 13 centimeter. And this right triangle is revolved about the side 12. इसको 12 के चारों ओर रिवॉल्व किया. So then a cone is formed whose radius is 5 centimeter and height is 12 centimeter. And find the volume of the solid of that. Here the solid is cone, so volume of cone is, volume of this solid is, we take the name V1 and its volume is 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 pi में रहने दो आंसर, r square 5 का square h 12, 3 4 the 12 and so put the values of r and h and cancel it. 5 square 25, 25 for the 100. So 100 pi centimeter cube is the volume of this solid. Next question number 8 is related for this. In the question number 8, the same question, a right triangle whose sides are 5, 12 and 13 and it is revolved about the side 5. अब किसकी तरफ से रिवॉल्व किया? 5 के चारों. 5 को यहाँ पे ले लो, ये 12, ये 5, सॉलिड ये बनेगा. वापिस कौन? ये आपका 13. Here the radius is 12 and height is 5 centimeter. And find the volume of this solid. Volume of solid V2 1 by 3 pi r square 12 का square h 5, फिर 1 by 3 pi 12 का square 12 into 12 into 5, 3 4 the 12 और ये हो जाएगा 245 centimeter cube is the volume of second solid. And again find the ratio of their volume. So ratio of volume V1 upon V2. So volume of first solid upon volume of second solid. Its ratio is V1 upon V2. V1 कितना 100 pi, V2 245, pi से pi cancel, 0 से 0, 2 से 5, 2 से 12, so that is 5 by 12. So its answer is 5:12. 5:12 is the ratio of their volume. Next question is question number 9. A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. एक वीट का जो ढेर है वो कोन के शेप में. A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter. Diameter होता है 2r, 10.5. तो r हो जाएगा 10.5 upon 2. पॉइंट को रिमूव करो 0. 5 4 the 20, ये 21 by 4 meter radius हो गई. And its height is 3 meter. So its height is 3 meter. Find the volume of this heap. Volume of heap is its
in the shape of cone, so 1 by 3 pi r square है, pi 22 by 7, r 21 by 4 और h 3, 3 7 the 21, एक 21 कैंसिल हुआ, ये 2, ये 11, so 11 into 63 अपॉन 8, इसका मल्टीप्लाई कर दो 693 अपॉन 8 और 8 से डिवाइड कर लो, 8 8 जा 64, 5 कैरी तो 53 हो जाएगा, फिर 8 8 जा 6 जा 48, 48 तो वापस 5 कैरी, फिर डेसिमल तो 50, फिर 8 6 जा 48, फिर 2 तो 20 और 8 2 जा 60 और 8 5 जा 40, 86.625 सेंटीमीटर, सॉरी इन द मीटर में है तो मीटर क्यूब, 86.625 meter cube is the volume of heap. In this question, the heap is to be covered by a canvas to protect it from rain. इसको बारिश से बचाने के लिए कैनवास से कवर किया गया, तो कैनवास कहाँ पर होगा? ओनली द कर्व सरफेस. To find the area of the canvas required. To find the required area of canvas. Again, पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम इज 86.625. Again find the required area of canvas. Required area of canvas. Required area of Again find the required area of canvas to protect it from the rain, and canvas is on the curved surface, so CSA of cone is pi r. So put the value pi 22 by 7, r 21 by 4. L हमें फाइंड करना है, तो L को पहले आप फाइंड कर लो. L होगा स्क्वायर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर 21 by 4 का स्क्वायर, r sorry that is the r, and h is 3 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होगा 441, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम ले लो 16, ये 441 और 16 इंटू 9 होता है 144. फिर इसका सम करेंगे, नीचे तो 16 का स्क्वायर रूट 4, ऊपर सम किया तो ये 5, 4 और 4 8, 4 और 1 5. अगेन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 585. Again find the square root of 585, and 585 is not a perfect square, so we will find the square root by the division method. Division method क्लास 8th में देखा आप लोगों ने, या पेयर बना दो 2 2 के, ये 5 रिमेनिंग है तो सिंगल एक पेयर रहेगा. आफ्टर यहाँ पे डेसिमल लगा के 2 2 0, दो पेयर में सबसे फर्स्ट पेयर है 5, तो 2 to the 4, फर्स्ट रो फॉर्म इट इज डिवाइडेड बाय 2, 2 plus 2 4, 5 minus 4 1 होता है, ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 85, एंड अगेन 4 4 जा 16, सो इट इज डिवाइडेड बाय 4 टाइम, सो 24 इज द होल नंबर एंड 4 टाइम इज डिवाइडेड एंड 176. अगेन 4 plus 4 8 एंड 4, इसका डिफरेंस हुआ 9, डेसिमल है, ये डेसिमल लगा के एक पेयर पूरा नीचे आएगा 0 का, तो 900 होगा. फिर अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 1 टाइम and whose difference is 419, फिर ये 2 0 का पेयर, और फिर नेक्स्ट लास्टली इट इज डिवाइडेड बाय 8 टाइम, सो 24.18 अपॉन 4. ये तो हुआ अपना L, and put the value of L
in pi RL. Put the value of L in pi RL. 24.18 upon 4. इसको सोल्व कर लो. 7 3 is 21. ये 2, ये 11 और ये कैलकुलेशन हो जाएगी 33 इंटू, इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, डेसिमल को रिमूव कर दो और 1/100 ले दो. ये 2 से ये 1209 और 33 इंटू 1209 अपॉन 4 इंटू 100. फर्स्ट ऑफ ऑल 1209 मल्टीप्लाइड बाय 33. 1209 को 33 से मल्टीप्लाई करो. 1209 मल्टीप्लाइड बाय 33. 27 3 2 6 3 1 3 7 2 6 3 7 9 8 9 3 39,897. ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. फिर इसको 4 से भी डिवाइड कर लो और 100 से डिवाइड करने में तो आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल लगा देना. इसको 4 से डिवाइड कर लो तो 4 से डिवाइड करने में फर्स्ट 4 9 36 3 8 अगेन 4 9 36 ये 2 4 7 28 1 and 7 4 4 16 and 1 के. अब यहाँ लगेगा डेसिमल और 0 और 4 2 8 2 0 and 4 5 20. अब ये तो 99,974.25 है, लेकिन वापस आपको 100 से भी डिवाइड करना, तो ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट आगे यहाँ शिफ्ट कर लो तो हो जाएगा 99.7425. तो 99.74 एंड वी कैन राइट 99.74. 2 डिजिट ही लिखना चाहो तो 2 डिजिट लिख सकते हैं. इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर. 99.7425 meter square is the required area of canvas. Next exercise 13.8 is based on sphere and hemisphere. Volume of sphere and hemisphere. Volume of sphere is 4/3 pi r cube and hemisphere is 2/3 pi r cube. The whole exercise is based on this formula. First question is find the volume of a sphere whose radius is 7. So, put the values of r equal to 7 centimeter in the 4/3 pi r cube. These are very easy question. So question number first and second is the homework, and we will start from the question number third. The diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक मेटेलिक बॉल है, इसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर. Then what is the mass of this ball? If the density of the metal is 8.9 gram, density of metal is 8.9 gram per centimeter cube. So mass is the volume into density. So first of all find its volume. Diameter है आपका 4.2, तो रेडियस हो जाएगी 2.1 and find its volume. Volume of this ball is 4/3 pi r cube. 4/3 pi की वैल्यू 22/7 और r 2.1 का क्यूब. ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब. सबको एक साथ ही कैलकुलेट कर लें. ये वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी बिकॉज मास इक्वल टू
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम आपका 4/3 22/7 और 2.1 का क्यूब और डेंसिटी ले लेंगे 8.9। इन सबको आप कैलकुलेट कर लो। ये 4/3 22/7 2.1 को 3 टाइम लिख दो तो डेसिमल भी रिमूव कर लो 21/10 21/10 21/10 8.9 को 89/10 जो 7 3 जा 21 ये एक तो कैंसिल होगा। फिर नेक्स्ट नीचे तो सीधे 10 में रहने दो तो 1 2 3 4 10,000 डायरेक्टली डेसिमल लगा। ऊपर मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 4 88 21 इंटू 21 441 और फिर 89। अब इनका मल्टीप्लाई करो 441 को 88 से मल्टीप्लाई, ये 8 4 जो 32 3 कैरी 35 और 3 5 2 8 8 और 2 10 1 कैरी 8 और ये 8 और 3 तो 38,808। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इसको 89 से मल्टीप्लाई करो, इसको 89 से भी मल्टीप्लाई करो 8 9 जा 72 0 से भी 7 आ जाएगा। फिर 8 9 जा 72 का 2 7 के लिए एंड 9 8 जा 72 तो 9 एंड 7 के लिए 9 3 जा 27 तो इसको सम करेंगे तो 34। फिर 8 से 8 8 जा 64 फिर 8 8 जा 64 का 4 6 के लिए 8 8 जा 64 77 के लिए 8 3 जा 24 24 और 7 31 यह हो जाएगा 31। अब इसका सम कर लो। ये फर्स्ट तो आ रहा 2 7 और 4 11 1 के 9 और 9 और 4 13 का 3 1 के 5 3 और 1 4 तो ये 3 है यहाँ पे 3 4 5 3 9 1 2 इज द मल्टीप्लिकेशन। और इसको आप डिवाइड करना है किससे 10,000 से तो 1 2 3 4 0 तो 1 2 3 4 तो 345.39 1 2 sorry it's a mass, so mass density are given in gram, so it's gram 345.39 gram. Next question is question number 4. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. What is the ratio of, what fraction of the volume of earth is to the volume of moon? हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून दोनों का रेशियो फाइंड करना है। एंड हियर द डायमीटर इज गिवन। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका मून है और इसको अर्थ लिया आप लोगों। इसका डायमीटर अगर डी लेंगे तो इसका डायमीटर डी बाई। इफ द डायमीटर इज डी तो लेट द diameter of earth be d, then diameter of moon d by 4। फिर रेडियस ऑफ अर्थ की रेडियस को कैपिटल आर ले लो, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी d by 2 और रेडियस ऑफ मून इसको स्मॉल आर ले लो। ये d by 4 है, इसका भी हाफ कर लो तो d by 8 d by 2 और d by 8। फिर what fraction of the volume of earth and volume of moon?
तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल आर क्यू, नीचे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और आर बाई आर को लिख दो होल क्यू। यहाँ आर स्मॉल आर की वैल्यू d/8, कैपिटल आर की वैल्यू d/2, और इसका भी क्यू। तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, d/8 d/2 का रेसिप्रोकल तो 2/d, d से d कैंसिल, 2 से ये 4, 2 4 जा 8, और 1/4 का होल क्यूब, और 1/4 का होल क्यूब, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, and 16 4 जा 64. So its volume is V1 upon V2. V1 किसको ले लेते हैं? मून को, और V2 किसको? अर्थ को। तो 1/64. So its ratio is 1/64. But the volume is 1/64 in the earth and moon.